वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। आवाज घटा दे मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब निवाज जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अपंगं विभूते। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ। डोलन ते रखो प्रभु। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी। मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरिया। चित चरण कमल का आसरा। चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुराइया गुर शब्दी एहो मन होड़िए। बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहें ना छोड़ी है। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरां दे चरनां दे विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। रिपीट ला सतगुरां दी ऐन भोजन साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप सरबत संगत धन धन 108 श्रीमान संत बाबा हरी सिंह जी नैकी वाले तिन्हां दी सालाना मिठी याद दे विच जुड़ बैठे हो। अमृत वेले तो सतगुरां दे चरनां दे विच दीवान सजे हुए ने। गुरु के कीर्तनिया ने और कविश्री जथा भाई कुलवंत सिंह जी माणू के तिन्हां ने आप जी दे नाल बाबा फरीद साहब जी का इतिहास सांझ पाई है। सो जितना समा महाराज बख्शदे ने बड़े प्यार नाल अगले जथे दे आउण तक ज्ञानी सरूप सिंह जी कडियाणा उन्होंने का समय 10 तो बाद बड़े प्यार विच हाजरी भरीए। कोई रसना वांझी ना रवे जी। सेवा कर लै नमाणी जिंदे मेरी।
सुआसां दा भरोसा कोई ना, सेवा कर लैनी निभानी जिंदे मेरी, सुआसां दा भरोसा कोई ना, सेवा कर लैनी निभानी जिंदे मेरी, सुआसां दा भरोसा कोई ना, सेवा कर लैनी निभानी जिंदे मेरी, धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की पावन और पवित्र हजूरी दे विच आप सरबत संगत दूरों नेड़ों चल करके सतगुरां नूं नमस्कार करके सज बैठे हो। सब तो पहला सतगुरां दी बख्शिश दोहराइए, गज के फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रवे जी। इको बारी कहण ते सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने अपार कृपा रहमत बख्शिश की है, अपने चरणों के विच बैठालण का समा बख्शिया। तो आप सरबत संगत भागां वाले हो, पिछले लंबे समय तो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान हो करके
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਅਸਲੀ ਕਰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ। ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 53ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਟੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ।
रब दे प्यारियां पिछे पदार्थ आप भजे फिरदे है। हुण गुरबाणी दे विच दो तरह का जीवन, दो तरह के इंसान की गल है, एक गुरमुख दूजा मनमुख। एक गुरु का सेवादार, एक गुरु घर च नुक्स कढ़ण वाला, एक संत एक असंत। दो दो तरह का जीवन महाराज ने बाणी च दोनों का जिक्र किया है। महाराज कहते संत मिले किश सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। कहते जे संत मिलता तो उन्हें विचार कर, उहदे नाल गुरु के ज्ञान की गल कर। जे असंत मिलता तो वह परछावां भी नहीं लेना, चुप करके दूर दी लंघ जाया कर। दोने गल्लां ने ना, संत भी असंत भी, गुरमुख भी ते मनमुख भी। ते प्यारिओ एक हुंदे ने संत, एक हुंदे ने ब्रह्म ज्ञानी, एक हुंदे ने साधु, एक हुंदे ने अकिरत घण। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। ते अकिरत घण किड्डा क भारा इस दुनिया दे उत्ते। भाई गुरदास जी दसदे बड़े प्यार नाल आप जी ने सरवण भी करना, नाल नाल सेवा का जिक्र भी करूं भी गुरमुख की है, सेवा करने वाले कौन ने, ते सेवा चो भी अपना फायदा देखने वाले कौन ने। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। क्योंकि गुरु घर दे विच तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निए पाइए। बाबा फरीद साहब का बारे सुनिया ना तुसी, जे क्या ना एक अख चाहिए अग लै जी, अपने शरीर की परवाह नहीं की, परवाह की भी मैनू मेरे गुरु की खुशी मिलनी चाहिए। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। ते इस इतिहास दे नाल अपना आप तोल के वेखो कि जदों गुरु घर च सेवा हुंदी है, कि जदों रब दे प्यारियां दा हुक्म हुंदा है, सारा कुछ विचे छड्ड के भजदा कि नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। गुरु घर दे विच अनाउंसमेंट हुंदी, भाई गुरुद्वारा साहब दे विच आपां सफाई करनी है, मैट झाड़ने ने, बिस्तरे धोने ने, आओ आपां रल के सेवा करिए। ते 100 वारी अनाउंसमेंट करोगे 5 जाने आउणगे, 100 वारी अनाउंसमेंट करोगे 5 जाने आउणगे। ते जे किते उसे गुरु घर दे स्पीकर चों अनाउंसमेंट होवे भी अज कमेटी चुननी है भाई, ते सारा पिंड आयो, ते जेड़ा बुढ़ा बीमार पिया हुंदा ना मंजे ते, सब तो पहला पग बन के हो जांदा है, वो जाके पहला गुरुद्वारे बह जाता है भी मेरे बिना सरना ही नहीं, मैं चुनूं प्रधान किहनूं चुनना है। क्योंकि बंदा हर थां अपनी वडियाई चाहुंदा है, समर्पित ते कोई है ही नहीं। समर्पित होने वाले बहुत घट ने, ते समर्पित होने वालियां दी गल, अकिरत घणां दी गल भाई साहब भाई गुरदास जी करते ने, बड़े प्यार नाल सुनते चलना जी। ना तिस पारे पर्वता आसमान कहंदे। कहंदे अकाल पुरख पातशाह जी इस दुनिया दे विच आ तुसीं इधर नूं हिमाचल नूं चले जाओ, ऊने नूं चले जाओ, गां बाबा बालक नाथ नूं मेला चलदा है, उधर किते उधर जाओ, किते हेमकुंड साहब वाल जाओ, किड्डे किड्डे वड्डे पहाड़ ने, उन्हां दा अंत नहीं है। जिन्ना उच्चा जाई जाओगे होर उच्चे दसदे है। भाई गुरदास जी इत्थे कहंदे परमात्मा जी अकाल पुरख जी ना तिस भारे पर्वतां आसमान खांदे, कहंदे आसमान नूं छूंदे ने पर्वत पहाड़, पर तैनूं वो भारे नहीं लगदे। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। बड़े बड़े पहाड़ ने, पर परमात्मा नूं वो बड़े बड़े पर्वत भी भारे नहीं लगते है। ना तिस पारे कोटगढ़ काजबार दिसंदे। ना तिस भारे कोटगढ़, अकाल पुरख जी बड़े बड़े किले बने हुए ने धरती ते, बड़िया बड़िया कोठियां पईयां होईयां ने, बड़िया बड़िया बिल्डिंगां बणियां होईयां ने, 150-150 मंजिल तक की बिल्डिंग तुहानूं धरती ते मिलती है। 500-500 मंजिला दुबई वालियां ने अपनियां बिल्डिंगां बना लईयां, पर अकाल पुरख जी तुहानूं वो कोटगढ़, वो किले, वो बड़िया बड़िया बिल्डिंगां वो भी भारियां नहीं लगदियां है। ना तिस पारे सायरा
नद वहंदे। ना परमात्मा तुहानू पर्वत भारे लगते हैं, ना अकाल पुरख जी तुहानू वड्डे वड्डे किले धरती ते बने भारे लगते हैं, ते ना तुहानू वड्डियां वड्डियां नदियां ते समुंदर वगदे जिहड़े ने वो भारे लगते, वो भी भारे नहीं लगते। किड्डा वड्डा समुंदर हुंदा है जी, किन्ना उहदे च पानी हुंदा है जी, पर परमात्मा नू भारा नहीं लगता। तुसीं अपने सिर ते वध तों वध किन्ना कुछ पानी चक लोगे, बड़ा ड्रम नहीं चकिया जाना, 500 लीटर पानी नहीं चकिया जाना, 400 लीटर पानी भी नहीं चकिया जाना, 200 लीटर पानी भी नहीं चकिया जाना। पर एडे एडे वड्डे समुंदर ते एडे एडे वड्डे दरिया जिहड़े पानी नाल भरे ही वगदे है, परमात्मा जी तुहानू वो भी भारे नहीं लगते है। ना तिस पारे तरवरा फल सफल फलंदे। परमात्मा जी इस धरती दे उत्ते बड़े बड़े दरख्त ने, बोड़ा वर्गे दरख्त ने, पिपला वर्गे दरख्त ने, चीलां वर्गे उच्चे उच्चे दरख्त ने, तुहानू वो दरख्त भी भारे नहीं लगते। बड़े बड़े दरख्त भी तुहानू भारे नहीं लगते। जिन्ने मर्जी होण, जिन्ना मर्जी जंगलात होवे, धरती ते परमात्मा नू कदे माड़ा लगा है? उल्टा असी दरख्त वढ़ के अपनी जान नू वक्त पाया। खो सतनाम वाहिगुरु जी। मैं परसों एक साडा मित्र है, उहदी लैबोरेटरी है जिहड़े टेस्ट करते होंदे, मैं उहदे कोल बैठा, वो कहंदा जी एक हैरानी की गल दसां तुहानू। मैं कहा दसो, सुनियो ध्यान नाल। कहंदा इत्थों एक बजुर्ग अपना पंजाब तो ना कनेडा गया, उहदे बच्चियां ने सद्दिया, जाके तीजे चौथे दिन बीमार हो गया, साह ना आवे, सारे उहदे टेस्ट हो गए, कहंदा कुछ आवे ही ना, डॉक्टरां नू पता ना लगे भी साह आउंदा क्यों नहीं। फिर उन्होंने फेफड़ियां की जांच की भी साह आउंदा क्यों नहीं। जिन्नी फेफड़ियां की समर्था हुंदी है उस तो ज्यादा फुल रहे सी, साह झटकना आउंदी सी। फिर उन्हें लभ्या भी इहदा कारण की बनिया, भी ये कैसी बीमारी है। कहंदा जी जदों उन्होंने सारे टेस्ट किए, सारा कुछ खोज की, उन्होंने रिजल्ट कढ़िया भी पंजाब विच प्रदूषण है 300 उत्ते, 300 तो उत्ते। कनेडा च प्रदूषण है 2 पॉइंट, पंजाब च है 300 तो उत्ते, 320-25 जिहड़ा प्रदूषण है ना हवा च। अज सारे काहतों पैने हो मंजियां ते तुसीं? अज काहतों तुसीं सारे खों खों करदे हो? की गल है? जिन्हों मर्जी पुछ लो, सेहत नहीं ठीक। कारण की है? दरख्त रहन कोई नहीं दिता, फैक्ट्रियां अन्नेवाह लग गईयां, हवा दूषित हो गई, शरीर झले किवें? आखो सतनाम वाहिगुरु जी। कहंदे जी कनेडा च 2 पॉइंट प्रदूषण है, तां भी उन्होंने फिक्र है भी इनू घटाउणा है। पंजाब च 300, दिल्ली च 650। कहंदे 300 प्रदूषण दे विचों बजुर्ग जदों 2 पॉइंट च आया ना, उतों जरिया नहीं गया, बीमार हो गया। भी इन्ना शुद्ध वातावरण है, वो गिज्जिया इत्थे दा होया सी। तुसीं हिसाब ला लो साडा हाल की बनिया पिया, अंदर की होएगा। बीमारियां ही ने, 40-45 तो बाद दवाइयां खांदे आ सारे। कारण की है? कल्ला किसे दोष साडा भी उन्ना ही है। तुसीं पुराने समय च इत्थे बजुर्ग बैठे है, अपने खेतां दे बन्नियां ते किन्ने दरख्त हुंदे सी, रह गया कोई? शौर आउंदी है जी, फसल मरदी है जी। पहले किते भुखे मरदे सी खेती करन वाले, नाले बहोलदा ना करदे हुंदे सी। ते मैं एक बेनती होर कर दिना है, जदों अगे घर विच दाणे आउंदे हुंदे सी ना, आ हाड़ी आ जानी, हुण कणक वड्ढणी है, कणक घरां च आएगी, ते जदों बजुर्गां ने बोल ये करने, कणकां कढणियां, कई कई महीने लग जाने, ते जदों कणक बोरियां च पाउणी ना, बोरियां च पहला पीपा पा के कहना बरकता। कहंदे सी कि नहीं कहंदे सी? नवीं पनीरी नूं नहीं पता, 2000 मॉडल वाले जिहड़े 20-22 साल वालियां नूं नहीं पता भी बरकता की हुंदा है। पहले पीपे नूं पाउणा, कहना बरकता, दूजा पीपा कहना दूआ, फिर तीया, फिर चौथा, ते जदों 5वां पीपा पैना ना बोरी च जां अगली बोरी च, ते बजुर्गां ने कहना बहुता।
आखो सतनाम वाहिगुरु जी। 5 पीपे हो जाने, कहना रब्बा बहुत देता जी। हुण 150 किला कमाद दा है, ट्रैक्टर दियां किश्तां फेर नहीं तार होंदियां, बैंक वाले मगर मगर घूमते हैं। कारण की है? क्योंकि रब दा शुक्र ही नहीं किया, सबर ही है नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। देख लो, भावें कोई धंधा है, कली खेती नहीं, कोई धंधा भावें, कोई शुक्र करता है, कोई कहता रब्बा बहुत देता, हुण अपना नाम दे दी, मैं भी विच ही हां तुहाडे। नहीं, होर 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 करदियां पहला बंदा शरीर गवा लैंदा है, पैसे कमाउंदा, मुड़ के उही पैसा शरीर नूं ठीक रखण ते लाई जांदा है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। हथ पल्ले कुछ भी नहीं आया, पहला शरीर तोड़ के, अपना आप तोड़ के मेहनत की, पैसा कमाया, ना सौण दा फिक्र, ना खाण दा फिक्र, ना कोई दूआ तीया फिक्र। ते जिद्दण कमाई करदा है फिर शरीर बिगड़दा है, फिर उही पैसा शरीर ते ला के ठीक रखदा है। बंदा इसे च ही उलझिया रह गया जी सारे ही। कोई कोई रब दा प्यारा, नानक कोटन में कोऊ नारायण जह जीत, कहंदे करोड़ां चों कोई एक, कोटन करोड़ हुंदे है, कोई एक जिहदे सच्ची मन च परमात्मा वसिया होवे। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जिन्हां दे वसिया ना हिरदे च, बाबा हरी सिंह जी महाराज वर्गियां, बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज वर्गियां दे हिरदे च, फिर उन्हां दी ओ पाई हुई कान्हियां दी छपरी भी सोहनी है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। भली सुहावी छपरी, ओ छपरी भी भली है, ओ छपरी भी सोहनी है, जिथे रब दे प्यारे बैठ के नाम जपदे ने। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, फकीरा हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। बाणी कहंदी हरि दे गुण गाउण वालिया। बाबा बाबा हरि दे गुण गाउण वालिया। बाणी कहंदी हरि दे गुण गाउण वालिया। बाबा बाबा हरि दे गुण गाउण वालिया। बाणी कहंदी हरि दे गुण गाउण वालिया। बाबा बाबा हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी धन है फकीरा छपरी, हरि दे गुण गाउण वालिया। उस परमात्मा दे गुण गाउण वाला भावें छपरी च ही रहिंदा होवे, ਉਹ ਛਪਰੀ भी सोहनी लगती है, उस छपरी भी सुहावी लगती है। हुण महाराज इत्थे भाई गुरदास जी बचन करते ने, 2 पंक्तियां बाकी है। भाई साहब कहते नदियां नाले समुंदर बड़े वगदे ने,
पर तैनू वो भी भारे नहीं लगते है। ना तिस भारे जी जंत अणगणित फिरंदे। भाई साहब जी कहते ना पर्वत भारे लगते हैं रब नूं, ना किले भारे लगते हैं, ना वड्डे वड्डे दरख्त भारे लगते हैं, ना नदियां नाले भारे लगते हैं, ते ना ही परमात्मा नूं जीव भारे लगते हैं। चाहे पशु होण, चाहे पंछी होण, चाहे मनुख होण, हाथियां वर्गे वड्डे वड्डे जानवर ने, रब नूं वो भी भारे नहीं लगते। अणगणत फिरंदे, जिन्हां दी गिणती कोई नहीं, धरती ते किन्ने क फिरदे है। 42 लाख जूनी धरती ते 42 लाख जूनी पानी च, 84 लाख जून है ते 84 लाख जून ते किन्ने किन्ने एक एक जून दे जीव ने। जे मनुखां दी गल कर लो 135 करोड़ तो भारत विच ही है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जिन्हां दी गिणती हुई है, जिहड़े रह गए होणगे पता नहीं हजे किन्ने क होणे। 135 करोड़ जनसंख्या ते भारत दी बंदियां दी है, ते पूरे वर्ल्ड विच किन्नी दुनिया होएगी? अद्धी दुनिया हवा चुड़ी फिरदी है, अद्धी क धरती ते है। किन्ने जीव ने, किन्ने जानवर ने, पर परमात्मा नूं कहंदे वो कोई भी भारा नहीं लगता है। हुण अखीर च भाई गुरदास जी दसदे हैं भी रब नूं भारा की लगता जी। पारे भुई अकृत कण मंदी हो मंदे। महाराज कहंदे ना पर्वत, ना नाले, ना दरख्त, ना जीव, ना जंतु, कुछ भी भारा नहीं लगता। परमात्मा जी फिर भारा की लगता है? कहंदे अकाल पुरख कहंदे मैनू वो लोग भारे लगते ने जिहड़े अकिरत कण हुंदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जेड़ी कदे किसे दी कीती नूं भुला देण ना, ओदे ही वैरी बन जाण। अकिरत कण बंदा कम लैके ते मुड़ के दूए दा नुकसान करे, कीती हुई सेवा भुले, कीते हुए उपकार भुले। कहंदे ओ अकिरत कण बंदा जिहड़ा गुरु तो बेमुख है, नाम दे नेड़े नहीं जाता, सिमरन दे नेड़े नहीं जाता, बाणी ते बाणे दा प्रेम नहीं है। क्योंकि बाणी दा वचन पढ़ो, महाराज कहंदे कबीर साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गाओ, साकत बपरा मर गया कोई ना लह है नाओ। कहंदे साकत अकिरत कण बंदे नालों सूर चंगा हुंदा है। हुण देखो सूर नूं भी अकिरत कण बंदे तो चंगा मन्निया महाराज ने। ते हिसाब ला लो, जे असीं कदे सेवा ही नहीं कीती, बाणी नहीं पढ़ी, गुरु घर नहीं गए, सिमरन नहीं कीता, परोपकार नहीं कीता, फिर असीं किन्ने क भारे लगदे रब नूं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। दो तरह के बंदे ने जिंदगी च आए ने, रहणगे, चलते रहणगे। साधु भी आउंदे रहने हैं, मनमुख भी आउंदे रहने हैं। इत्थे मैं बेनती तुहाडे चरनां च करदा, गुरु रामदास महाराज जी दे घर च 3 पुत पैदा होए। बड़े पिरथी चंद, छोटे महादेव, सब तो छोटे धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। ते बाबे आदम ने जदों लकड़ां दी सेवा कीती सी ना रामदासपुर दी धरती ते, अमृतसर साहब, 70 साल दी उम्र सी बाबे आदम दी। सियालां दे दिन सी, ठंड बहुत सी, बारिश पै के हटी सी, ते बाबा आदम लकड़ां इकट्ठियां करके गुरु घर दे लंगर च लिआउंदा हुंदा सी। 1 मिनट लै रहा तुहाडा, जे गुरु कृपा करे 70 साल की उम्र च भी पुत दे दिंदा है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जे गुरु त्रुठे, रात दे दीवान च सुनिया सी ना तुसीं, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। जे वो चाहे लूले लंगड़ियां नूं पर्वत तो पार लंघा देवे, जे गुरु चाहे। ते रात प्रसंग भी भगवान बाबा श्री चंद जी का सुनिया सी, किवें एक कड़ियाल पिंड दे विच जन्म तो लूले लंगड़े बच्चे दे सिर ते हथ रख के उन्होंने कायम किया। वो चाहे जो मर्जी कर दे। ते प्यारिओ, जदों बाबे आदम ने सेवा की, गुरु रामदास महाराज ने अमृत वेले दे दीवान च पुछया, कहंदे ठंड बहुत सी, संगत ते बड़ी औखी हुई हो। कहंदे नहीं महाराज, संगत नूं कुछ औखा नहीं होया। क्यों? कहंदे जी बाबे आदम नाम का एक सेवादार है, उन्हें घरों जिन्नियां लकड़ां सी
ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਨਾ ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਗਣ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਦਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਚਿੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੜ ਗਈ। ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, 2 ਦਿਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਊ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
70 साल की उम्र जिदन मंगिया ते 71 साल की उम्र जिदन घर च पुत आ गया। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। सोच सकता कोई गुरु नानक का घर किड्डा वड्डा। इत्थे उन्होंने औलादा मिल गई जिहड़े 70 साल के हो गए। उन्हां ते कृपा हो गई जिन्होंने साईं मियाँ मीर जी ने कहा सी जलंधर खां वर्गे राजे नूं कि तेरे कर्मां च औलाद नहीं। ते जदों जाके अमृतसर साहब सेवा की तिन्ने ही राणियां, चारे राणियां ते नाल जलंधर खां राजा ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने उहदा मस्तक पढ़ के ही होका लाता सी कि गुरु घर च जो सेवा कर जाएगा मूहों मंगियां मुरादां पाएगा। गुरु अर्जन देव जी नूं तां मलाप ही नहीं सी होया। सरोवर की सेवा की, सरोवर की सेवा चल रही सी। गार दे भर भर के बट्ठल बाहर नूं सिੱਟੇ। उसे राजे दे घर 3 पुत ते 1 धी ने जन्म लिया। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। कर्म बदल गया जदों सेवा की। वो असीं करदे नहीं। जिन्नी करोगे किसी तरह की भी हो सकती है सेवा। मैं आरंभता च बेनती की है, किसी गरीब नूं जल छकाउणा भी सेवा है, किसी गरीब नूं कपड़े लैके देने भी सेवा है, किसी दवाई दे लोड़वंद नूं दवाई लैके देनी भी सेवा है, किसी दे बच्चे नूं पढ़ा दिओ वो भी सेवा है। जिन्नी कर लोगे गुरु खुश हुंदा। होवे लोड़वंद, ये नहीं भी रोज पाइया आधिया पी के सौंदा होवे तो फिर कहे असीं गरीब हाँ। इदां दा गरीब नहीं चाहिदा भी जिहड़ा रोज दिहाड़ी ला के अधिया पी के सौवे ते लोकां नूं कहे मैं गरीब हाँ। वो काहदा गरीब है जिहड़ा शराब पी के रोज सौंदा है? वो गरीब नहीं गिणिया जांदा। गरीब वो हुंदा जिहदे पल्ले कख ना होवे ते औरी पै जावे आके। बड़े परिवार ने ऐसे। खैर मैं अपनी बेनती ते रवां। हुण महाराज जी दे घर विच 3 पुत सी। चौथे पुत दा वर बाबे आदम नूं दिता ते बाबे आदम दी कुल गुरु रामदास महाराज जी दे बचनां नाल चली। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। गुरु नानक दे घर दे सेवादार रहे। उधरों गुरु नानक महाराज जी दी चौथी जोत उन्हां तो चलदी चलदी सेवा 10वें पातशाह तक आ गई। ते इधरों बाबे आदम दी चलदी चलदी कुल भुच्चो मंडी विच निवास कीता। मालवे च भुच्चो मंडी दे विच बाबे आदम दा परिवार, क्योंकि चौथे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक समा लंघ गया ते इदां जीवन च हुंदा ही रहिंदा भी बंदा इत्थों कदे सब कुछ बेच के दूजी थां जाके बस गया, उत्थों बेच के तीजे थां बस गया। ये जिंदगी च चलदा ही रहिंदा है। हुण किन्ने टब्बर ने जिहड़े बाहर वस गए। इत्थे 10-10, 20-20, 50-50 किले छड्ड के कनेडा जा वसे। उत्थे जाके फिर जीरो तो शुरू होए। बदलदा रहिंदा समा। समय दे नाल नाल टिकाणे भी बदलते रहिंदे है। ते प्यारिओ जदों भुच्चो मंडी दे विच आके बाबे आदम दी कुल विचों भाई दयाल दास रहिंदे है ते इधरों गुरु कलगीधर पातशाह सेवा ते ने 10वें पातशाह। ते एक दिन महाराज मालवे इलाके दे विच लंघदे जांदे है। भुच्चो मंडी विच दी लंघण लगे। तुसी जाओ ना इधरों जगराओं तो बरनाला, कोटकपूरा, मानसा, इधर रस्ते च भुच्चो साहब आउंदा है। भुच्चो मंडी आउंदी है। हुण जदों उस भुच्चो दे विच दी महाराज जी लंघण लगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाबे आदम दी बेनती कर रहे हैं। ते उस वेले सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का घोड़ा, जिन्हों नीला घोड़ा कहीदा है, वह पानी वाल नूं खिच करदा है। महाराज नूं जापदा है भी इस मेरे घोड़े नूं प्यास लगी है, क्योंकि जदों पानी आउंदा सी पानी वाल नूं खिच करदा सी। ते एक थां जाके महाराज ने घोड़ा रोकिया, घोड़े तो उतरे, अपने सेवकां नूं, अपने गुरसिखां नूं कहिंदे है, कहंदे जाओ नीले घोड़े नूं और टोबे तो जल छकाओ। बेनती विच की आ जानी है, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, नगुरे का है नाउ बुरा, नाउ बुरा। मारे कहंदे नगुरे बंदे दा नाम लेना भी माड़ा है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जेड़ा बनिया नहीं ना किसी दा, उहदा नाम लेना भी माड़ा है। हुण
बचन ने बाणी दे, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, 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 सतगुर बाजों गुर नहीं कोई। गुरे का है नाओ बुरा, 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 गुरे का है नाओ बुरा। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, 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 सतगुर बाजों गुर नहीं कोई। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, नगुरे का है नाओ बुरा, नाਉ बुरा। गुरु घर दे विच नगुरे बंदे दा नाम लेना भी माड़ा है। ते पातशाह जी जदों भुच्चो मंडी विचों लंघदे लंघदे टोभे कोल रुके, उस वेले महाराज कहंदे ਸਿੰਘੋ इस घोड़े नूं जल छकाओ। ਸਿੰਘਾਂ ने घोड़े नूं फड़िया, ओदियां लगामां फड़ के जदों कोल लगाए पानी दे, पानी वाल वेख के घोड़ा काहली नाल तुरिया, प्यास लगी है। ते जदों मुख अपना मूँह नीला घोड़ा पानी दे कोल लग्या ना, मूँह लाया नहीं, सुंघ के वापस मुड़िया। प्यास लगी है, पानी वाल भजिया भी है, पर जदों पानी दे लागे मूँह जांदा है ते सुंघ के पानी पिछे मुड़दा, पानी पींदा नहीं। खिच खिच के सिंह कोल नूं करदे आ भी प्यास भी लगी है, पींदा भी नहीं। जदों नहीं घोड़े ने पीता, अड़ी कर ली ते आके फिर महाराज नूं सिंह कहंदे, महाराज घोड़े नूं प्यास भी है, घोड़ा पानी वाल नूं खिच भी करदा है, घोड़ा पानी वाल नूं खिच भी करदा है, पर इन पीता नहीं। घोड़े ने पानी नूं सुंघ के वापस मुड़िया है। महाराज ने जदों ये वचन सुनिया, पातशाह कहंदे पता करो टोभा है किहदा। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। क्योंकि हुण अरगे टोभे थोड़ों सी, ये तो 30 40 50 साल पहला भावें बजुर्गों नूं पुछ लो भी टोभे किदां दे हुंदे सी। कपड़े भी उत्थे ही धो लैणे, चुब्भा भी उत्थे ही मारे आउणा। ये तो हुणे ही है भी जदों दे घरां च बोर हो गए, ना पानी किन्ना चलदा है वो पता है, जदों दियां सरकारी टूटियां लग गईयां चलदी चली जावे असीं बिल दिन्ने आ, नालियां भरियां ही जांदियां असीं बिल दिन्ने आ। यही रोह पाई जांदा भी मैं महीने का 150 रुपया दिना, लै भी इहदा मतलब फिर चलदी होई रखनी है भी भरियां जाण नालियां, भर जाण छप्पड़ गंदे पानी नाल। हुण प्यारिओ साफ सुथरे टोभे, ते जदों महाराज ने कहा पता करो टोभा किहदा है, भुच्चो मंडी च पता किया, कहंदे ओ फलाना टोभा किहदा है जी। ते दसण वालियां ने दस पाई जी इत्थे भाई दयाल दास रहिंदे है, बाबे आदम दी कुल है, गुरु नानक दे घर दे सेवादार, ये उन्हां दा टोभा है। महाराज कहंदे फिर दयाल दास नूं बुलाओ। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जदों दयाल दास नूं सुनेहा भेजिया, सिंह जी महाराज ने भेजे, ते जाके महाराज दे वल्लों वचन कीता, कहंदे दयाल दास गुरु गोबिंद सिंह महाराज भुच्चो मंडी आए हुए ने, तेनू याद करदे।
ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੋਗ ਲਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਭੋਗ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਟੋਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਟੋਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਾਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਛਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਛਕਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਜੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਬਥੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜੀਏ, ਉਹ ਕਹੂ ਤੂੰ ਛਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਛਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਲ ਕੇ ਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਕੰਮੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਚਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹਾਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਦੀ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
मन साफ चाहिए, अमृत छकिया ही है। महाराज कहते असीं खुद छकिया, तेरे नाल ये बचन है भी अमृत छकेगा ताही गुरु घर का लंगर प्रवान तेरे घर का होना है, नहीं तो ले फिर सानू तेरे लंगर की लोड़ कोई नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। सीधा ही महाराज ने मना करता जी, सानू कोई लोड़ नहीं तेरे घर के लंगर की। साडे घोड़े ने सियाणप वरती, तेरे टोबे का पानी नहीं पीता तू नगुरा है। घोड़े नूं इन्नी समझ है भी जे नगुरे के टोबे का पानी पी लिया मेरी कीती सेवा व्यर्थ हो जानी है, तो मैं तेरे घर का लंगर खा ला। मैं नहीं खा सकता जिन्ना चिर तू गुरु वाला नहीं बनता। हुण प्यारो इत्थे एक भेद भी है, मैं वो भी बेनती करदा, दयाल दास का लंगर नहीं प्रवान किया तू अमृत जिन्ना चिर नहीं छकदा। भाई नंद लाल नूं छकाया ही नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। दो गल्लां ने ना। दयाल दास वेले महाराज ने कहता लंगर ही उदों छकना है जदों अमृत छकेगा, नहीं तो लई फिर। नंद लाल 52 कवियां चों महान कवि है भाई नंद लाल जी, महाराज ने उन्होंने नंद सिंह बनाया ही नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। वो हिंदू परिवार का जंपल है। महाराज कहते अपने परिवार च जेड़े च पैदा होया है अपने धर्म च पक्का रह, असी प्यार तैनूं उन्ना ही करते हैं। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। हुण दो ने ना गल्लां इत्थे, क्यों? क्योंकि वह जन्म हिंदू घराने का सी। महाराज कहते अपने धर्म च पक्का रह, गुरु घर नाल प्यार है, चंगी गल है, सदा रहेगा। ते भाई नंद लाल जी दियां गजलां उन्हां दी रचना अज 5 तख्तां ते गाई जाती है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। ते दयाल दास नूं कहंदे जिन्ना चिर तू छकदा नहीं उन्ना चिर तेरे घर का लंगर प्रवान नहीं। क्यों? क्योंकि वह गुरसिखां दे घर च पैदा होया सी। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। हुण अपना हिसाब किताब आपां लाउणा है भी असीं किहड़े घरां च पैदा होए। देगां ते आपां भी कराई दियां, लंगर ते आपां भी थाल सजा के महाराज मूहरे जाईदा है। अपने घरां च जदों महाराज घर च आउंदे है, अखंड पाठ साहब होंदे है, सुखमनी साहब होंदे है, सहज पाठ साहब होंदे है, असीं भी तां थाल लैके जाईदा लंगर दा, महाराज प्रवान करनगे। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। क्योंकि साडा हाल भी हजे दयाल दास वर्गा ही है। हाँ इत्थे मैं भी बेनती करदा है, निर्मले महापुरुष, सेवा पंथी महापुरुष ते उदासीन भेख दे महापुरुष, उन्हां दी अपनी मर्यादा है सेवक गुरु घर दे ही। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप निर्मले ते उदासी महापुरखों नूं बख्शे नाल बचन कीता सी कि महापुरुषो जाओ जाके बाणी दा प्रचार करियो। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। नहीं तो महाराज उस वेले कह सकते सी पहला अमृतधारी होवो फिर बाणी देंगे, क्योंकि उन्हां दी अपनी मर्यादा चलदी, अपना पंथ चलदा है। पर जेड़ा गुरसिख दे घर च तुसीं वेखो, थोड़ी जी झाती पिछे नूं मारो अपने बजुर्गों वल, बजुर्ग साबत सूरत अमृतधारी, बजुर्ग दा पुत केस रखे ने, दाढ़ी कटदा है, गां पोता सिरा ही लांदा, ना सिर ते वाल ना मूँह ते वाल। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। तीजी पीढ़ी तक आउंदा आउंदा बदल गया सारा कुछ। अपने तो दादे वाल झाती मारो, दादा क्लीन शेप सी गुरसिख घर च। अज तो 30-40 साल पहला, 50 साल पहला भी हिंदू भरा भी साबत सूरत ते पग्गां बन्नदे हुंदे सी। ये तो जदों दे नाटक जिह चलाते ना भी राम जी नूं क्लीन शेप बनाता, कृष्ण जी नूं क्लीन शेप बनाता, शिवजी महाराज नूं क्लीन शेप बनाता नाटक च, उदां दे रूप असीं बना लिया अपने। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। ये तो डंडा सख्त है, नहीं तो गुरु नानक बनाउण नूं भी ये नाटकां वाले चिर ना लाउंदे। इत्थे रज के बेअदबी करते जिवें बाकी धर्मां दे नुमाइंदियां दी करदे है, कोई नहीं पुछदा। इत्थे माड़ा जिहा कोई उदां गल हो जाए सानूं ठेस पहुंचदी है। वो एक बंदा एक नाटक विच कृष्ण भगवान बनिया है, दूजे नाटक चों रज के बीड़ियां पींदा ते शराबां पींदा, कोई पुछदा ही नहीं। उस वेले ही पीण लग जाते हैं। उधरों किरदार करके आउंदे, शूटिंग करके आउंदे हैं, बसां च बह के शराब पीण लग पैंदे। जदों अपने किरदार चों बाहर आ जाते हैं फिर
उन्हां आगूआं दी उन्हां धर्म दे पैरोकारां दी बेअदबी नहीं, पर नहीं बोलदा कोई। आ तुसीं सड़क दे किनारे जाओ, इथों मालपुर तो हुशियारपुर नूं चले जाओ, रस्ते च तुहानूं मूर्तियां बनाउण वाले मिलदे है, जिन्हां दे घोड़े घूड़े बौलद बना के रखे हुंदे है। उन्हां ने किसी पीर फकीर की मूर्ति बना के भी रखी होंगी, उदां ही घट्टा पई जांदा है। किते माता दी किते गणेश जी की मूर्ति बना के सड़क के कंढे रखी है, उत्ते घट्टा मिट्टी पई जांदा, कोई नहीं पुछदा जी। बाद विच धूफां लाउण लग जांदे, पहलां कोई पुछदा नहीं। हुण भांबड़ ते मचदा, जे कोई इदां दी गल कहो कहणगे ठेस पहुंचदी है, भी उदों नहीं पहुंचदी जदों सड़कां दे उत्ते घट्टा पैंदा मूर्तियां ते। क्यों नहीं अपने धर्म नूं देखदे? क्यों अपने पैरोकारां दी बेअदबी कराउने हो? बना के रखे कोई गुरु नानक महाराज की मूर्ति सड़क के कंढे, आखो सतनाम वाहिगुरु जी। नहीं बनाउंदे ना कदे तुहानू गंदी जगह ते महाराज की मूर्ति नहीं। हाँ, साडे कई भुल्लड़ लोग गुरुआं पीरां पैगंबरां दीयां फोटोआं अखबारां ते भी छापदे आ, कैलेंडर भी घरां 'च आपां लिआउने आ। उन्होंने अगन भेंट करने की बजाय पानी च रोड़ दिंदा है, मुड़ के वो गंद च जदों पानी सुक जाता है, पानी बंद हो जाता है, उही गुरुआं पीरां दीयां फोटोआं तुहाडे नहरां दे विच रुड़दियां ते उत्थे जानवर कुत्तियां वर्गे घुमदे ने, मल मूत्र करदे ने। रज के बेअदबी तां आप करदे हो तुसीं। काडां दे उत्ते बाणी छपदी है, ब्याह भोग दे काडां ते बाणी दीयां पंक्तियां छपदियां। ब्याह भोग लंघदा, रूड़ी ते चाके मारदे, सानू चेता ही भुल जांदा भी उत्ते बाणी दी पंक्ति भी है। बेअदबी तां असीं आप करदे हैं, ध्यान केन देना इधर नूं। तुसीं उन्हां चीज़ां नूं इकत्तर करो, प्रातन हो जाण, अगन भेंट करके राख जल प्रवाह करिया करो। ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं हटना कि नहीं, पर तुसीं अपने घरां च आउण वालीआं तस्वीरां जां बाणी दीयां पंक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਡਾਂ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ख्याल रखिया करो। अब्बल ते छपाओ ना, ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ इस गल का ख्याल रखो, छपाओ ना। छपाउण वाले नूं कहो भी भाई बाणी दी पंक्ति जां गुरु का निशान किसी भी धर्म का साडे कार्ड दे उत्ते ना होवे। ये तुसीं कहना है, छपाउण वाले ने फिर हटना है। नहीं तो वो कहते जी घर वाले गुस्से हो जाते, सानू छपाउणा पैंदा। रज के बेअदबी करते हैं, गुरु की बेअदबी है छोटियां छोटियां गल्लां ही है, पर ध्यान नहीं। तुसीं कई बार वेखो, बहुत सोहनी कोठी पाउंदा बंदा, 2.5-3 करोड़ रुपया ला लैंदा है, अपने बड़े महंगे महंगे बैड लिया के रखता है, बड़े सुंदर सुंदर कमरे बनाउंदा है। तो जे तुसीं घर का गेट देखो ना, तो उत्थे बाबा दीप सिंह की फोटो कौले ते लाई हुंदी है बाहर, भी असीं सौने अंदर, तुसीं राखी करो बाहर। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। भी गुरु दीयां तस्वीरां बाहर घट्टे मिट्टी च लाउण नूं, घरां दे बाहर। जिहड़ा कोई नज़र बट्टू नहीं लाउंदा, वो गुरुआं दीयां फोटोआं ला दिंदा। प्यारेओ ध्यान रखिया करो, ये सारी बेअदबी है। अनजाने च कर लैने आ, सानू पता नहीं हुंदा, पर यह करनी नहीं चाहिए, ये करनी नहीं चाहिए। पापां दे भागी बनदे हो। मन बाबा प्यारा सिंह जी ने सिरथले वालियां ने उदण इत्थे दीवान च कहा सी ना, मन अचेत पाप ते डर रे, जान बुझ के तो करना ही की है, अचनचेत भी ना होवे। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। इदां दा पाप अचनचेत भी ना कोई हो जाए जिहदे नाल मेरा लेखा बने। हुण दयालदास अड़ गया जी, कहंदा मैनूं छकण दी लोड़ नहीं। महाराज कहंदे चंगा, जे तू अमृत नहीं छकना, तेरा लंगर नहीं छकना। महाराज अगे चल पे, चाले पाते महाराज ने, ते दयालदास ने खैड़ा नहीं छड्डिया, वो भी लंगर लैके महाराज दे मगर मगर ही जा रहा। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। 7 दिन मगर ही घूमदा रहा जी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं, पूरा 1 हफ्ता महाराज दे मगर मगर जाता रहा जी। महाराज प्रशादा छक लो, महाराज कहना अमृत छक, वो फिर कह दे दूए दिन महाराज प्रशादा छक लो, जिथे पड़ा कर महाराज कहते पहला अमृत छक। 7 दिन बेनतियां करता रहा, महाराज अग्यों यही जवाब देंदे रहे, अमृत छक। हुण प्यारिओ, 7 दिनों बाद एक गुरु के प्यारे सिंह ने दयालदास नूं कहा, दयालदास तैनूं खुद
गुरु नानक दी जोत ने बचन किया भी अमृत छक। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। जे गुरु तो बेमुख हो गया ना, कहते बिना छकिया, भावें तू बाबे आदम दी कुल विचों, तेनों नरकां च थां नहीं मिलना जे गुरु गुस्से होके चल गया। गुरु दा बचन मन ते बचन तो कदे पासे नहीं होईदा, बचन ते पहरा देईदा है। सूर बीर बचन के बली, बाणी दा बचन है। ਜਿਹੜੇ बचन पगाउंदे ने सूरवीर होंदे ने, योधे होंदे ने, भी ਜਿਹੜਾ बचन कर लिया वो पूरा करना ही करना है। ते प्यारिओ, तैनूं गुरु बचन करदा भी अमृत छक, ते जे हुण गुरु तू बचन ना मन्निया ते गुरु तेरे तो मुख मोड़ के चलिया गया, ते मित्रा किते नरकां च भी थां नहीं मिलना, भावें तू बाबे आदम दी कुल विचों। क्योंकि अवतारां ने भी लेखा दिता है। ये मत जानो भी असी गुरु घर च आने हैं जी, मत्था टेकते, साडा खरे कोई लेखा ही नहीं होना। करतूत करोगे लेखा होना है। बाबा श्री चंद जी ने कहा सी ना लक्ष्मी दास जी नूं, कहंदे जिन्ने जीव मारे शिकार कीते लेखा देना पैना। छोटा भरा सी बाबा लक्ष्मी चंद जी, गुरु नानक महाराज दे छोटे सपुत्र। बाबा श्री चंद जी वड्डे ने, उन्होंने बचन किया लेखा देना पैना। कहंदे मैं गुरु नानक दा पोते हाँ, मैं लेखा काहनूं दूं। कहंदे भावें आपां गुरु नानक दे पोते हाँ, पर जेड़ा कर्म कीता वो भुगतना पैना। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। एक प्रमाण होर लै लो, फिर मैं अपनी बेनती लागे करदा। जथा पहुंच चुका है, जल पानी छक के उन्हीं आ जाना है। कृष्ण महाराज दे पैर च तीर वज्जा सी। दुआपर युग दे अवतार भगवान कृष्ण जी महाराज एक बारी पैर ते पैर रख के लम्मे पै ने, इदां जिद्दां आपां रख लईदा ना लम्मे पै के, ते कृष्ण महाराज दे चरनां च पद्म सी। रात दा वेला सी, ओ पद्म चमकिया। जदों पद्म चमकिया ते शिकारी सी दूर, ओन देखिया किसी जानवर दी अख चमकदी है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। ध्यान नाल सुनियो, कृष्ण भगवान जी बाणी च जिक्र आउंदा महाराज दा, जो दुर्योधन दे घर नहीं सीगा, राजन कौन तुम्हारे आवे, कृष्ण जी दा नाम तो बाणी च है। ते कईयां नूं गुरु नानक महाराज दे घर चों कृष्ण जी दा नाम लैण ते भांबड़ मची जाण। जब गुरबाणी जिक्र करदी है तो फिर असीं क्यों ना करिए। मैं लेखे की गल करदा भी अवतार ने दुआपर युग दे भगवान कृष्ण। जदों पैर च पद्म चमकिया, दूरों शिकारी ने देखिया, कहंदा किसी जानवर की अख है, उन तीर चलाता जी। निशाना विद्या, पूरे जोर नाल तीर चलाया, कृष्ण महाराज के चरणों च लगा आके, ते वो आ गया। जिहड़ा शिकारी सी भी जानवर डिग पिया होना, जिहदे तीर लगा है। जदों आके देखिया ते दुआपर युग दे अवतार भगवान कृष्ण जी तां ही रो पिया, चरना ते डिग पिया, महाराज मेरे तो पाप हो गया। मैं जानवर समझ के रात दे हनेरे च तुहाडे चरण चमके, मैं जानवर दी अख चमकदी समझ के तीर मारिया, महाराज मेरे तो गुनाह हो गया, तुहाडे चरना च वज्जा। महाराज कहंदे इहदे च दोष कोई नहीं, ये तेरा ते मेरा हिसाब किताब सी, तू वो पूरा कीता है। महाराज मैं समझिया नहीं। कृष्ण महाराज कहंदे जदों त्रेता युग सी, बाली ते सुग्रीव दोए लड़दे सी भरा, ते मैं एक ओ भरावां चों एक दी मदद कीती सी धोखे नाल, क्योंकि शक्ल उन्हां दी एक सी बाली ते सुग्रीव दी, ते एक दे गल च हार पाता जिहदी मदद करनी सी भी मैं तैनूं पछाण लऊं, नहीं ते चेहरा इक्को जिहा सी। ते लुक के राम जी ने जदों तीर दा बाण मारिया सी ना, लुक के छल करके ते ओ एक जोधा मारिया सी। कहंदे उदों मैं तेरे मारिया सी, मैं राम सी, तू ओ सी बाली सुग्रीव चों एक। अज तू शिकारी है ते मैं कृष्ण। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। उदों मैं तेरे मारिया सी धोखे नाल, अज तेरा मेरे नाल हिसाब किताब सी, अज तू वो अपना बाण मार के मेरे तो हिसाब पूरा किया, ते हुण असीं दुनिया तो जावांगे इसे जख्म करके ही जावांगे। मैं कहना की चाह रहा तुहानूं भी भावें खुद कृष्ण भगवान
उन्होंने भी लेखा देना पै गया। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। आपां की है जी, पापां दे खलवाड़े बद्धे ना धर्म दी बद्धी पूली, समस्त बरेज दी खल लोहाई मनसूर चढ़ाया सूली। इत्थे वड्डियां वड्डियां दा आ हाल होया, मित्रा तू किहड़े बाग दी मूली। आपां की है जी। हुण जदों दयाल दास नूं 7वें दिन क्या ना सिंह ने कि जे गुरु गुस्से हो के मुड़ गया रुस के, तू बचन ना मन्निया, नरकां च भी थां नहीं मिलदा। कहंदे 7वें दिन ज्ञान हो गया, जाके हथ जोड़ के बेनती की कलगीधर पातशाह दे चरनां च कि महाराज जी रहमत करो, मेरे तो भुल हो गई, 7 दिन तुहाडा बचन नहीं मन्निया। 7 दिन, एक नहीं दो नहीं 7 दिन। ते हुण किरपा कर दिओ, सानू अपने मना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी, अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लो पंजवाड़े, कोहल दे के खंडे तार दी। अपने बना लो पंजवाड़े, कोहल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। सानू अपने बना लै कलगी वालिया, पुल दे के खंडे तार दी। बेनतियां कीतियां, महाराज जी सानू अपने चरनां नाल जोड़ो। दयाल दास 7वें दिन अकल करके मुड़िया आ, बचन मन्निया, महाराज दे चरनां च बेनती की, 5 प्यारियां तो अमृत दी दात लई, दयाल सिंह बनिया। महाराज कहंदे लिया हुण अपना लंगर। महाराज 7 दिन हो गए मगर मगर आउंदे नूं, लंगर ते खाण जोग नहीं होना। महाराज कहंदे लैके ते आ। जदों कोल लैके आए, महाराज ने जल का छिट्टा दिता जी लंगर ते, कहंदे खोलो हुण ढक्कन इन्हां दे। जदों देगां दे उस ढक्कन नूं खोलिया जिन्हां च लंगर सी, कहंदे भाफां निकलदियां ने। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। 7 दिन महाराज ने लंगर नहीं छकिया जी, अमृत नहीं छकिया दयाल दास ने। ते हुण अपना अपना हिसाब ला लेना आपां। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। 7 दिन बेनती करके अमृत की दात 5 प्यारियां तो लई। फिर महाराज ने दयाल दास तो दयाल सिंह बनाया, फिर ओदे घर दा लंगर प्रवान किया। नहीं तो घोड़े ने भी महाराज दे ने ओदे टोबे दा पानी नहीं सी पीता, क्योंकि नगुरा है। आखो सतनाम वाहिगुरु जी। सो महाराज बचन करते ने, जे जीवन दे विच गुरु वाले ना बने, गुरु दियां खुशियां ना लईयां, प्यार ना लिया, फिर जिहा आए तो जिहा ना आए एक बराबर ही है। सो इन्ने दिन संगत करनी, महापुरखों दीयां यादां मनाउणियां, गुर चरनां विच जुड़ के बैठना, ताही लाहेबंद है जे गुरु घर चों गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करके चलीए। बहुत बहुत संगतां दा धन्नवाद। दूरों नेड़ियों चल करके सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच पहुंचे हो, सब नूं जी आयां, सब दा धन्नवाद। महाराज दे वजीरां दा धन्नवाद, समूह डेरे दे सेवादारां दा धन्नवाद। साडे तो पहला कवीशर ज्ञानी कुलवंत सिंह जी माणू के हाजरी भर के गए ने, धन्नवाद। साडे तो बाद पंथ की महान हस्ती ज्ञानी सरੂਪ सिंह जी कडियाणा, तिन्हां दे ढाडी जथे ने आप जी दे नाल सांझ पाउणी है। आप जी ने इसे तरह प्यार नाल बैठ के हाजरियां भरनियां। आए हुए जथे नूं जी आया, धन्नवाद। सब तो वध धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का, जिन्होंने तरस करके सतसंगत दीयां घड़ियां बख्शियां। श्रीमान संत बाबा सुरजीत सिंह जी, श्रीमान संत बाबा सतविंदर सिंह जी,
महापुरखों का धन्यवाद जिहड़े गुरु साहब जी के चरणों का ओट आसरा लैके संगत के सहयोग नाल पिछली 23 तरीक तो लै करके ये महान संगत के कुंभ रचे हुए ने। तुसीं इस कुंभ विच इशनान कर रहे हो। आने वाला समा भाई साहब भाई लखवीर सिंह जी पासों सरवण करो। अति सत्कारयोग डरोली खुरद तो बाबा जगदीश दास जी आए ने। जी आयां नूं धन्नवाद। जिन्ने भी महापुरुषों नाल प्यार करते संगत विच पहुंचे ने सब नूं जी आयां, सब का धन्नवाद। और गुर टीवी चैनल राही विदेशों की धरती पर बैठ के महापुरखों के प्यार वाले जो इन्हां समागमां विच हाजरियां भर रहे ने उन्हां सारियां संगतां दा भी धन्नवाद। आओ बड़े प्यार नाल अगला प्रोग्राम भाई साहब भाई लखवीर सिंह जी पासों सरवण करो। होइयां तमाम भुलां चुकां दी खिमा, कोई रसना वांझी ना रवे। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा